Hello my dear students, class 8 students, welcome to all of you in my today's class. Dear students, first of all, I would like to inform you that we have just started chapter 2. Chapter 2, the name of the chapter is Microorganisms and Friend and Foe. Microorganisms, Friend and Foe, we have started currently this chapter. In my previous video, you have seen the microorganism concept and its effects. So its varieties, types and classifications. We have classified the microorganism in the 4 ways, that is virus, bacteria, fungi, protozoans, okay, algae. So we have seen all types of microorganism in a group. Now today we are just going to see its effects. These effects, microorganism means bacteria and virus, what types of effects can be seen. There is a chapter related to microorganism, friend and foe. So it means there are some microorganisms which are helpful to us, and on the other hand there are some microorganisms which are harmful to us. So dear students, we have to classify on the basis of the performance, function, action of particular microorganism in the case of our daily routine. So dear students, as you know that majority of the microorganisms are harmful, but few of them are useful to us. So in previous ancient time, the people living in the society, they were unknown about the importance of microorganism. They have only one sense that all the microorganisms are harmful to us. But after increasement of science technology, advanced scientific equipments, which has proved that all microorganisms are not harmful to us. There are some microorganisms which are useful to us. So dear students, जो concept है यहाँ पे friend and foe means, friend का मतलब है कुछ माइक्रोऑर्गेनिज्म जो हमारे लिए हेल्पफुल हैं, ठीक है, और कुछ ऐसी हैं, फो का मतलब होता है एनिमी टाइप के जो हार्मफुल हो, ठीक है. जैसे फ्रेंड है तो फ्रेंड का अपोजिट क्या होगा, एनिमी. तो हमारे लिए माइक्रोऑर्गेनिज्म फ्रेंडली भी हैं और एक तरह से एनिमी भी हैं. जैसे एनिमी क्या जैसे कोई दुष्ट है, शैतान है, तो वो हमारे लिए क्या कर सकता है, हमारा हार्म कर सकता है, हानि कर सकता है. तो उसी तरह माइक्रोऑर्गेनिज्म फ्रेंड भी हैं, आर जस्ट ट्रीटेड एज फ्रेंड. ऑन द अदर हैंड सम माइक्रोऑर्गेनिज्म आर ट्रीटेड एज फो. फो मीन्स होता है एनिमी. एनिमी का मतलब होता है, एनिमी मतलब होता है जो शत्रुता. जैसे मित्र का अपोजिट क्या होता है, शत्रु. तो कुछ बैक्टीरिया हमारे लिए हेल्पफुल भी है, कुछ हार्मफुल भी है. तो इन दिस वीडियो वी आर जस्ट गोइंग टू डिस्क्राइब द पर्टिकुलर फंक्शन of microorganism in various fields of our life, in which fields they work, which are beneficial to us. On the other hand, there are some bacteria, there are some microorganisms which are harmful to us. We will discuss in later video, but today we have to concentrate only, we have to assume the microorganism as a friendly in this video. So first of all, let us discuss one by one point. Microorganisms are utilized in making curd, bread and cake. It's very important because all these things, if the microorganisms are not there, if we assume that microorganisms are absent from the universe, from the society, then we will be unaware, we will be unable to prepare curd, bread and cake, because these things can be prepared on the basis of microorganism, totally based on microorganism. कैसे होता है, जैसे सिंपल सी बात करें, मिल्क से हमको कर्ड बनाना है, ठीक है, मिल्क से कर्ड. तो मिल्क से कर्ड बनाने के लिए एक सर्टेन टाइप ऑफ बैक्टीरिया रिक्वायरमेंट है, जिसे कहते हैं लैक्टोबैसिलस. लैक्टोबैसिलस कौन सी बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस. लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया. लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया
लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया इसका सिंगुलर हो जाता है लैक्टोबैसिली। तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो होते हैं ये आपको क्या करते हैं कि जो मिल्क में लैक्टोज पाया जाता है, मिल्क में लैक्टोज, ये लैक्टोज को क्या करते हैं एसिटिक एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। यानी द बैक्टीरिया कन्वर्ट्स लैक्टोज इनटू लैक्टिक एसिड। जैसे मान लो कि कोई वार्म मिल्क है, उस वार्म मिल्क में हमने क्या किया, प्री मेड कर्ड, पहले से बनाई हुई कर्ड उसमें हम डाल देते हैं वार्म मिल्क में। इफ यू ऐड प्री मेड कर्ड इनटू वार्म मिल्क, देन द बैक्टीरिया ऑलरेडी प्रेजेंट इन प्री मेड कर्ड, it will multiply the production of conversion of lactose into lactic acid, then the curd can be made. In case of that, if you add some bacteria like जैसे ब्रेड में आप डालते हो कर्ड में, तो ये क्या होता है केक जैसे आपका स्पॉन्जी होता है, फूलता है। तो इन दिस वे वी कैन से दैट दिस टाइप्स ऑफ मेकिंग कर्ड एंड ब्रेड एंड केक, bacteria plays very important role in that aspects. So let us move towards the second point, that is microorganisms are used in the production of alcohol, wine and acetic acid, vinegar. A microorganism are used in the production of alcohol, wine and acetic acid, vinegar. माइक्रोऑर्गेनिज्म एल्कोहल के प्रोडक्शन में भी यूज होता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म एल्कोहल के प्रोडक्शन में फर्मेंटेशन प्रोसेस होती है। फर्मेंटेशन प्रोसेस में क्या होता है कि ईस्ट जो होते हैं, जो बार्ली और मेज में पाए जाते हैं, उस ईस्ट को हम लोग क्या करते हैं, ईस्ट पाउडर भी आता है, ईस्ट पाउडर को हम लोग क्या करते हैं उसमें डाल देते हैं। किस में? शुगर टाइप्स ऑफ फ्रूट्स, जैसे फ्रूट्स है, फ्रूट से बनाते हैं एल्कोहल, या रोटेन ग्रेन्स। सो उसमें क्या होता है कि आप पहले ईस्ट डाल देते हैं, ठीक है। ईस्ट डाल देंगे तो ईस्ट क्या करेगा, फर्मेंट करेगा, ठीक है। फर्मेंटेशन प्रोसेस के थ्रू एल्कोहल बनेगा। और एसिटिक एसिड भी बना सकते हैं हम लोग। जैसे एसिटिक एसिड किससे बनता है, जैसे मान लो शुगर केन, ठीक है। शुगर केन में जो शुगर होता है मीठा होता है, तो शुगर केन में क्या होता है कि शुगर जो मीठा होता है उसमें अगर हम ये डाल दिए ईस्ट, तो ईस्ट डालने पे वो जो है लैक्टोज, वो कन्वर्ट हो जाता है एसिटिक एसिड में। तो लास्ट में बनता है तो एसिड में मतलब वो विनेगर बन जाता है। विनेगर का फार्मूला होता है जो जैसे सिरका कहते हैं उसको, ठीक है, सिट्रिक एसिड, CH3COOH, दैट इज द विनेगर एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड के फॉर्मेशन में, विनेगर के फॉर्मेशन में माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल बाय द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन। विद द हेल्प ऑफ फर्मेंटेशन प्रोसेस द एल्कोहल कैन बी प्रिपेयर्ड, एल्कोहल कैन बी मेड। Next one is a microorganisms are used in the production of medicines or drugs called antibiotics. Microorganisms plays very important role in the formation of medicine. Okay, when we fall ill due to the some entering of pathogens which causes disease, which express disease inside our body. So if you have taken already some antibiotics, after that we take some antibiotics, so drugs, antibiotics, medicines are made with the help of microorganism. If we take the medicine, then the bacteria increase inside our body which are disease causing, it will be killed by the medicine. तो मेडिसिन मीन्स मेडिसिन में क्या होता है, कुछ वही जो बैक्टीरिया के एंटीबायोटिक्स मतलब है कि जो आपकी बैक्टीरिया पैथोजेंस इंटर कर लिए हैं बॉडी में, उसमें जो हम लोग मेडिसिन खाते हैं, मेडिसिन लेते हैं, तो वो मेडिसिन में प्रेजेंट बैक्टीरिया हमारे बॉडी में प्रेजेंट एक्सेस बैक्टीरिया को जो डिसीज काजिंग है उसको किल कर देते हैं। तो कह सकते हैं तो देयर आर सम डिसीजेस विच आर काज्ड बाय वायरस। इन केस ऑफ वायरस वी हैव सीन दैट इन केस ऑफ वायरल डिसीजेस जैसे फ्लू, कॉमन कोल्ड, in such types of diseases antibiotics medicine cannot work, yani the viral diseases cannot be cured
by using antibiotics. एंटीबायोटिक्स की दवाई, एंटीबायोटिक्स से हम वायरल डिसीज को नहीं कर सकते. उसमें क्या होता है कि कुछ सर्टेन वैक्सीन, we have to use the vaccine. As you know that in this time COVID-19 virus, if we talk about COVID-19 virus, so everybody is facing, this is the global problem. All countries are facing such types of problems, and there is no any vaccine which can fight against this virus. Every country is trying to prepare vaccine for the proper COVID-19 virus which can work against the COVID-19 virus. जैसे आपने देखा पोलियो के लिए भी वायरस दिया जाता है, वो वैक्सीन. तो वैक्सीनेशन इज द प्रोसेस विच इज गिवन टू अ पर्सन थ्रू ओरल मतलब माउथ से, ओरल और बाई इंजेक्शन, बाई यूजिंग एप्रोप्रिएट इंजेक्शन इनसाइड आवर बॉडी. सो वैक्सीन हमारे बॉडी के अंदर इंटर करेगी. Vaccines are also prepared. Vaccine can be prepared by using microorganism. वैक्सीन जो प्रिपेयर होती है वो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से क्या होता है, प्रिपेयर होती है. तो वैक्सीन भी डेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे बॉडी में प्रेजेंट हैं, जो अलाइव माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसको क्या करती है वैक्सीन बॉडी के अंदर इंटर करने के बाद वो उसको किल कर देती है. और जो हमारे और इट रिमेन्स फॉर लॉन्गर टाइम्स. इट हैज द प्रिवेंटिव पावर्स for longer times. In case if we come into contact of viral disease, if the virus enter inside our body, then vaccine start to work. So therefore पोलियो, आपने देखा कि पोलियो बच्चों को माउथ से पिलाते हैं, ठीक है, माउथ से डायरेक्ट ओरल सस्पेंशन करते हैं. जैसे एक बार ग्लोबल प्रॉब्लम हुआ था स्मॉल पॉक्स, ठीक है, तो स्मॉल पॉक्स देखा था, एडवर्ड जेनर ने उसको खोजा था 1798 में. तो एडवर्ड जेनर ने क्या किया था, वैक्सीनेशन प्रोसेस के थ्रू स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन बनाया था. तो धीरे धीरे क्या हुआ कि स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन आने से स्मॉल पॉक्स जो डिसीजेस है वो धीरे धीरे कम होती गई है, ठीक है. जिससे चेचक होता था, स्मॉल पॉक्स पूरे बॉडी में निकल आता था. उससे क्या होता है कि हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मेडिसिन और ड्रग्स. ओके, let us move towards the importance of microorganism are used in agriculture. सबसे important ये है microorganism plays very important role in agricultural practices. In agricultural practices microorganism just like green blue algae, ठीक है, bacteria, there are some certain bacteria which are found inside the soil just like green blue algae. तो ये जो आपकी algae होती है, और कुछ there are some certain bacteria which are found inside the root nodules of a plant. रूट नोडुल्स के प्लांट्स में जो जैसे पी प्लांट्स, ठीक है, पी प्लांट्स, तो रूट नोडुल्स में क्या होता है कि देयर आर सम सर्टेन बैक्टीरिया विच आर प्रेजेंट जस्ट लाइक राइजोबियम. तो राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द रूट नोडुल्स कन्वर्ट्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजनस कंपाउंड. नाइट्रोजनस कंपाउंड में कन्वर्ट कर देता है एंड आर म्यूचुअली कोरिलेटेड. और म्यूचुअल कोरिलेशन है विद द हेल्प ऑफ सिम्बायोसिस विच यू हैव लर्न्ड दिस इन प्रीवियस वीडियो. व्हाट इज सिम्बायोसिस? सिम्बायोसिस प्रोसेस का मतलब है म्यूचुअल बेनिफिशियल. जैसे राइजोबियम बैक्टीरिया है तो वो भी तो बदले में उसके होस्ट में कुछ लेगी, ठीक है, वो अक्वायर करती है फ्रॉम द रूट नोडुल्स. वी कैन से दैट ड्यूरिंग द नाइट्रोजन फिक्सेशन all of you know that plants and animals both require nitrogen in appropriate quantity. And the nitrogen present in the atmospheres, in the atmosphere, जो हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट है गैस, ये नाइट्रोजन गैस को प्लांट डायरेक्टली ले नहीं सकते हैं. प्लांट कैन नॉट टेक द एटमॉस्फेरिक गैस जस्ट लाइक नाइट्रोजन प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर इन द फॉर्म ऑफ द गैस. प्लांट एक्सेप्ट नाइट्रोजन इन केस ऑफ नाइट्रोजनस कंपाउंड, यानी नाइट्रोजन के कंपाउंड बनने के बाद होगा. जैसे नाइट्रेट, ठीक है, नाइट्रेट कंपाउंड. तो कंपाउंड का मतलब है कि टू कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीजन्स एंड नाइट्रोजन्स अदर थिंग्स एंड फॉर्म्स अ नाइट्रोजनस कंपाउंड. एंड दिस नाइट्रोजनस कंपाउंड प्लांट एक्सेप्ट. And I have told you that this process is carried out by many ways. The nitrogen fixation can be carried out by many ways, by many techniques.
So I am telling you the one technique. First is because we are bonded here to study about the microorganism. So we have to learn the microorganism. यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म. तो जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है वो नाइट्रोजन फिक्सेशंस यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू दिखाना होगा. तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू यहाँ पे हमको कुछ बैक्टीरिया, just like I have told you, rhizobium bacteria and blue green algae, all these types of microorganism plays very important role in fixing of nitrogen. Okay, that's clear. तो आप कुछ और प्रोसेस भी है नाइट्रोजन फिक्सेशन के बता दें थोड़ा सा. जैसे लाइटनिंग है, ठीक है, लाइटनिंग प्रोसेस से भी हम लोग कर सकते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन. ऐसा नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है. कुछ आर्टिफिशियल वेज हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है. लाइटनिंग तो ऑटोमेटिक होता है. देयर आर सम आर्टिफिशियल वेज ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन. आर्टिफिशियल वेज में जैसे आपका लाइटनिंग के थ्रू क्या होता है, जैसे आपने देखा कि लाइटनिंग और थंडरिंग होती है. तो लाइटनिंग थंडरिंग में बहुत सारी हीट्स इवॉल्व होती है. तो वो हीट एटमॉस्फेयर में जो सारी हीट इवॉल्व होंगी उस एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन इज आल्सो प्रेजेंट. ओके, ऑक्सीजन आल्सो प्रेजेंट्स एंड ड्यू टू द हाई हीट oxygens combined with nitrogens to form nitrate compound, and these nitrogenous compounds intermingle in the rain waters and falls down on the surface of earth, and these waters, rain waters, is utilized by the plants through the soil, and these are the nitrogenous compound. Okay, so plant can acquire the nitrogenous compound in the form of nitrogen fixation. Next one move is here is a agricultural practices में nitrogen fixations very important role. Always often question comes in that. Microorganism clean up environment. Microorganism, there is another factors of microorganism in cleaning the. Okay, microorganism plays very important role in cleaning up environment. You have seen that if any animal dies, okay, in case any animal dies and it is thrown on the surface of earth, on the roadside, that any casualty has taken, any animals come into contact of vehicles, running vehicles, motor vehicles, and suddenly the animal dies. So animals, after you see that after some days the animals whole body, the entire body of animals disappears. So the disappearances of animals is decomposed by some certain bacteria. So bacteria decompose, यानी वो क्या करते हैं, धीरे धीरे उसको डिकम्पोज करते जाते हैं. ठीक है, डिकम्पोज मतलब खत्म करते जाते हैं. वो धीरे धीरे आपने देखा है कि बाद में एनवायरमेंट पूरा क्लीन कर देते हैं. तो बैक्टीरिया प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन क्लीनिंग ऑफ द एनवायरमेंट. सो डियर स्टूडेंट्स, वी हैव सीन दैट द पॉजिटिव थिंकिंग ऑफ. इस वीडियो में हमने क्या देखा, इस वीडियो में हमने ये देखा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनका भी हमने पॉजिटिव व्यू पॉइंट देखा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं. ठीक है, अभी तक जो हम लोग देखे सब पूरा पॉजिटिव थिंकिंग है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का. अब पहले जो पुराने सिस्टम में, ओल्ड ट्रेडिशन में था कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को लोग, जब साइंस इतना ज़्यादा एडवांस नहीं था, इतना ज़्यादा लैब सिस्टम नहीं था, लोग अवेयर नहीं थे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में, तो बहुत सारी चीज़ें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो चीज़ें हैं उसके बारे में हम लोग नहीं जानते थे. फिर साइंस टेक्नोलॉजी डेवलप हुई, उसके बाद ये पता चला कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं हमारे लिए हेल्पफुल भी होते हैं, हार्मफुल नहीं होते हैं. ओके, अंडरस्टैंड? ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड द इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. So dear students, there is some work which you have to do in your copy. The work is given by you. Work will be done by you in time. You have to do these works which are given by you on blackboard. These will be considered as your homework. Okay? So note down the homework. What is the homework? And class work is understanding. You have learnt the बेनिफिशियल रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एज ए फ्रेंडली. तो होमवर्क में क्या होगा, पहला क्वेश्चंस, ठीक है, हाँ, मेंशन
mention the importance of microorganism. एक ये हो गया, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखो, मेंशन द इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन आवर लाइफ। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लाइफ में कैसे हेल्पफुल है ये आपको बताना है डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट इज आपको ये बताना है नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है। राइट अ शॉर्ट नोट Okay students, so look at the blackboard. You can see 3 questions over here which are written. You have to solve these questions 1, 2, 3 as a homework. Consider these questions as your homework. You have to write the answers, appropriate answer for these questions. So question number first is mention the importance of microorganism in our life. Mention the importance of microorganisms in our life. Write a short note on nitrogen fixation. And third is write down the process of fermentation. Fermentation मतलब अल्कोहल का प्रिपरेशन कैसे होता है। Okay students, take a screenshot of this homework and do the homework properly in time. Okay, thank you.